major focus on unit 3. Okay, we have very less time to complete. Okay, so I think last session I already started this Rolle's theorem. Okay, if your given function is continuous on a closed interval AB, if it is differentiable on an open interval AB, and f of A is equal to f of B, then there exists a C which lies between A and B such that f dash of C is equal to 0. This is the theorem. And now let me take some examples quickly on this part. So question क्या है? State whether Rolle's theorem is applicable for the following function. So check whether Rolle's theorem is applicable for these 4 functions or not. If so, अगर applicable हो रहा है, find the approximate value of C. ठीक है? So let me take the first function f of x equal to under root of x minus a and b minus x on a closed interval AB. This is the function. Okay, it is defined on a closed interval AB. तो पहले तो आपको क्या चेक करना है? Okay, since अभी इसका रीजन एक्चुअली ये है, ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो फंक्शन है, ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ, and under root, and since it is continuous, every polynomial function is continuous, therefore its under root means under root of a continuous function is also continuous. ये वो रिजल्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले याद रखो सारे क्वेश्चंस में सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस ही है. कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी आपको प्रॉपर चेक करनी है ऑलमोस्ट. हाँ, मतलब ये कोई ऐसा इन जनरल ही बोल रहा हूँ मैं, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूटी रहेगी, डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा बहुत फोकस करना है. सो हियर since this under root function is a continuous function, why? Because it's a polynomial function. Therefore, the whole function f of x equal to under root of x minus a into b minus x is also continuous. So वो directly यहाँ पे लिखा है f of x being a polynomial function is continuous. I think not f of x. तो यहाँ पे थोड़ा आपको रिजल्ट समझ में आ गया ना, ये इतना प्रॉपर नहीं है. If I call it as g of x, अंडर रूट के अंदर का जो फंक्शन है, सो अंडर रूट ऑफ g of x. So since this is a polynomial function, g of x is a polynomial function, hence its under root is also continuous. ये एक्चुअली रीजन है, बट आपने डायरेक्टली लिखा है ये भी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि कंटिन्यूटी में हम कोई भी स्पेसिफिक रिजल्ट यूज नहीं करने वाले. आपको बस ये मेंशन करना है कि गिवन फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लाइक दैट स्टैंडर्ड फंक्शन ही रहेंगे. नाउ लेट अस चेक द डिफरेंशिएबिलिटी. तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए या डेरिवेटिव चेक करने के लिए एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, आपको मैंने एक ट्रिक दी. आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन में एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है एंड वो आपको फाइनाइट चाहिए, तो ये वो डिफरेंशिएबल होता है. इफ इट इज इनफाइनाइट इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. सो लेट मी कैलकुलेट एफ डैश ऑफ एक्स. तो यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon 2 root x. So 1 upon 2 root x multiply by derivative of bracket term. तो यहाँ पे UV का रूल जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. Is this clear? Any doubt in the derivative? Clear. Okay. And now just simplify the numerator. You will get this. Okay. Now this derivative, okay, which is clearly exist for all the points, क्योंकि डेरिवेटिव आप कहाँ पे चेक कर रहे हो? डेरिवेटिव ओपन इंटरवल पे चेक कर रहे हो, नॉट ऑन अ क्लोज इंटरवल. कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे. तो ये जीरो होगा only when x is equal to a and x is equal to b. But these points are not there in my interval because of open interval. Hence, this function is hence this derivative exists for all values which belongs to open interval AB. Clear? Therefore, it is differentiable. Hence, it is differentiable. ठीक है, दोनों केसेस समझ में आ गए क्लियरली? नहीं आ रहा तो मुझे ना बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा. This derivative does not exist only when x is equal to a and x is equal to b, but because of the open interval, these points are not there in our interval, hence it become differentiable. ठीक है, yes, बस ये देखना है डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो आता है, उतना ही फोकस करना है. Now, so this is the second condition. थर्ड कंडीशन क्या है? f of a must be equal to f of b. तो f of a अगर आप कैलकुलेट करते हो which is 0, f of b कैलकुलेट करते हो which is 0, है ना? So it satisfies all the 3 conditions of Rolle's theorem, है ना? So ये पहला पार्ट आपको ये चेक करना था whether
this function satisfies the conditions of Rolle's theorem or not. Okay, hence this given function satisfies all the conditions of Rolle's theorem. Now I have to find C. So there exists a C which belongs to open interval AB such that f dash of C equal to 0. तो डेरिवेटिव आपने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है, इसलिए फिर से आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो दिस इज द डेरिवेटिव जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. तो यही डेरिवेटिव आपको x इक्वल टू सी पुट करके आपको 0 से इक्वेट करना है. सो कैन आई राइट लाइक दिस. सो ओके मैं दिखाता हूँ. तो क्या मिलेगा आपको, माइनस बोलो 2c प्लस b प्लस a अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ c माइनस a एंड b माइनस c एंड इक्वेट दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, if this value is equal to 0, this implies ये तो 0 से कैंसिल हो जाएगा and you will get minus 2c plus b plus a equal to 0. करेक्ट ना? Yes sir. Okay, क्योंकि डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा and that implies what is c? a plus b by 2. ओके डन. ये था आपका पहला क्वेश्चन. ठीक है, लैंग्वेज तो आपको पता है, आप मैच कर सकते हो. यहाँ पे उन्होंने x में लिखा है, x कैलकुलेट किया था बट वो c से ही कैलकुलेट करना है. ठीक है, ओके. सो c इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2. डन. नाउ लेट मी चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट ये था x माइनस 2 रेज टू 2/3. ठीक है, सो f of x being a polynomial function, it is continuous on closed interval 0 to 4. अभी यहाँ पे आपका ऑब्वियसली डाउट होगा कि सर पॉलिनोमियल फंक्शन में आपकी पावर क्या आती है? इंटीजर आती है. तो एक्चुअली इसका रीजन ये है कि f of x आपकी इसको ऐसे एज्यूम करो, f of x रेज टू 2/3. ठीक है, हाँ. तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है. हेंस that function raised to any k is also continuous where k is positive. सर इथे असं झालंय का मग सर, म्हणजे x - 2 चा स्क्वेअर करून त्याचा सर क्यूब रूट घेतलाय ना? हाँ करेक्ट. But you cannot say this as the polynomial function. Actually mathematically वो करेक्ट नहीं है. This is not a polynomial function, है ना? करेक्ट ना? हाँ. तो बस अभी उन्होंने रीजन ये दिया है कि f of x being a polynomial function is continuous, बट आपको उसके पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स है उसके अंदर. ठीक है, सो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर प्रॉपर लिखना है. सिंस x minus 2 is a polynomial function, hence it is continuous, hence x minus 2 raised to 2/3 is also continuous. अगर आपको लिखना है तो, या आपने डायरेक्टली भी लिखा तो भी कहीं पे मार्क्स आपके लेस नहीं होंगे. ठीक है, ये भी आप रीजन दे सकते हो. सिंस x minus 2 it's continuous, since x minus 2 is continuous, therefore x minus 2 raised to 3/3 is also continuous. ठीक है, इसका रीजन why? Because it is a polynomial function. ठीक है, ये था पहला पार्ट. सो कंटिन्यूस तो है क्लियरली. नाउ लेट मी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, तो उसके लिए आपको मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव चेक करने के लिए पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करो. सो इट इज x रेज टू n. x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n minus 1. and now this is the minus power, so you have to shift this term in the denominator. so here you will get 2/3 multiplied by 1 upon x minus 2 raised to 1/3. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है डेरिवेटिव में? No sir. Okay. Now tell me when this denominator becomes 0. Sir at x equal to 2. At x is equal to 2. मतलब क्या होगा, जब आप x equal to 2 पुट करोगे f dash of x की वैल्यू कहाँ पे जाएगी? इन्फिनिटी को जाएगी. So it is not finite. It is not finite when x is equal to 2. And this point lies in our interval. Clear? Yes sir. Therefore this function is not a differentiable function, which is not finite for all values belongs to open interval. Okay, open interval 0,4. Hence this function is not differentiable on the open interval 0,4.
therefore this function not satisfies, or Rolle's theorem is not applicable for this given function. Okay, next mod x. अब mod x चेक करना है -1 to 1 पे, आप ही बोलो मुझे डायरेक्टली, कैन वी अप्लाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस, क्योंकि लिया है क्वेश्चन मैंने, कैन वी अप्लाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन? नो सर, No, sir. Why? Because it is not differentiable at x equal to x 0. equal to 0, and which lies in the open interval -1 and 1. 0 इस इंटरवल में आ रहा है, तो वही है. ओके, इट्स अ स्टैंडर्ड फंक्शन. ठीक है, कंटिन्यूटी में ना एक तो पॉलिनोमियल का रीजन है, या तो mod x sin x स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो आप डायरेक्टली भी लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही क्लियर किया है कंटिन्यूटी पार्ट आपको एक्चुअली डायरेक्टली लिखना है, उसमें ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको वो लिमिट से लेफ्ट साइड लिमिट, राइट साइड लिमिट, ऐसा कुछ चेक करके आपको नहीं लिखना है. दिस पार्ट इज ऑलरेडी ओवर इन 11th and 12th. वी हियर मोर फोकस इज ऑन थ्योरम ओनली. ठीक है, सो इट्स अ स्टैंडर्ड फंक्शन mod x, लॉगरिथम है एक, mod x, ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, हेंस इट इज कंटीन्यूअस, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. नाउ लेट मी कैलकुलेट डेरिवेटिव f dash of x. पता है ना आपको ये डेरिवेटिव आता है f dash of x का? हाँ, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, या तो ये एक वे होता है. व्हाट इज, हाउ यू डिफाइन दिस mod x? x if x is greater मुझे लग than रहा or है equal to. कि नो नीड टू गो विद दिस अप्रोच, है ना? वाई? क्योंकि आप चाहो तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ये रीजन में स्किप कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दे सकते हो. अब ये मेरे पीपीटी नहीं है, बट स्टिल इंस्टेड ऑफ दिस इट्स बेटर टू ड्रॉ इट्स ग्राफ, है ना? क्योंकि रीजन आपके हाथ में क्या देना है. ड्रॉ इट्स ग्राफ, जो सबसे इजी रीजन हम वही देते हैं. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x, और आप डायरेक्टली लिखो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट दिस mod x फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. शायद यही रीजन मैंने दिया था जर्नल में जब मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा था. क्लियर? और जिनको नहीं पता दे हैव टू रिमेंबर दिस डेरिवेटिव. mod x का डेरिवेटिव ये आता है x अपॉन mod x. ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो या डायरेक्टली ग्राफ से भी लिख सकते हो. इट इज अप टू यू क्या रीजन देना है. ठीक है, अगर थियरी में आता है तो कहीं पे. सो आप ऐसे भी लिखो फ्रॉम ग्राफ mod x is clearly not a differentiable at x is equal to 0. Hence Rolle's theorem is not applicable for this function. MCQs में आपको फंक्शन होगा, ऐसे 4-5 फंक्शन रहेंगे 4 ऑप्शन में, और आपको क्वेश्चन होगा फॉर विच फंक्शन वी कैन अप्लाई Rolle's theorem. For which function, which of the following function we can apply Rolle's theorem. We can apply Rolle's theorem. तो 4 ऑप्शन रहेंगे. एक ऑप्शन में x minus 2 raised to 2 by 3 on 0 to 4. Second option mod x minus 1 to 1. Third option x square minus 2 to 2, and like that. Fourth option एक होगा. So बोलो क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे? सर सी. ओके, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है mod x है तो ये नहीं होगा, ये डेरिवेटिव इसका नीचे आने वाला है, तो x इक्वल टू 2 पे प्रॉब्लम होगी, तो ये भी नहीं होगा. ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इट हैज टू. हाँ बोलो ना. सर 3 कंडिशन चेक करायचे आपल्याला. सर जर सेकंड कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली तर थर्ड कंडिशन ट्राय करायचं आपण. नहीं बरोबर. सो अगर एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इफ इट सेटिस्फाइज ऑल 3 कंडीशन, देन ओनली वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम. करेक्ट ना? इफ दैट फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल 3 कंडीशन, देन ओनली वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम. अगर कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो दैट फंक्शन इज, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट फंक्शन. ठीक है, तो अभी तक वो थर्ड कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको यहाँ पे. अभी यहाँ पे आपको पता चल रहा है यहाँ पे थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी बट डिफरेंशिएबिलिटी की नहीं हो रही है. क्लियर ना? माइनस एंड 1 की वैल्यू सेम आएगी. तो ऐसा भी होगा. हाँ, सो नेक्स्ट इज
अगेन इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, आप इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली ये ऐसे किया तो भी चलेगा, एक्स क्यूब ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो योर फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 2x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 5, करेक्ट ना? यस Yes, sir. हाँ, तो ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल hence it is continuous on close and hence it is differentiable on open interval। डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, सॉरी वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो इफ इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नाउ चेक एट f of 0 and f of 1, f of 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0, f of 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0, करेक्ट ना? यस सर 0 ठीक है, क्योंकि ये f of x है, तो तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट? सो देयर एग्जिस्ट अ c such that f dash of c equal to 0, ये सॉल्व ही है। सो f of 0 की 0, f of 1 की 0, so it satisfies all three condition, ठीक है। सो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ c such that f dash of c equal to 0, तो f dash of x, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली u भी से किया है, ओके, आप कैसे भी करो, इट डिपेंड ऑन यू। सो मैं प्रीवियस मेथड से अगर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्या आ रहा था, x रेज टू 3, सॉरी x रेज टू 3 माइनस 2 x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 5 ना, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ सर Yes, तो sir. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज 3x स्क्वायर 3x square माइनस Minus 8x क्यूब प्लस 5 plus 5x 5x raised to 4, ठीक है। एंड आई ओके, सो दिस डेरिवेटिव इज 0 है ना, देयर एग्जिस्ट अ c so that f dash of c equal to 0, so that implies 3c square minus 8c cube plus 5c raised to 4 equal to 0। तो इसको सॉल्व करने से पहले आई कैन टेक c स्क्वायर कॉमन, करेक्ट ना? Yes, sir. C square कट यस गया सर 0 3 माइनस 8c प्लस 5c स्क्वायर इक्वल टू 0, तो c स्क्वायर कॉमन मतलब एक रूट आएगा 0, Zero. एंड इसके रूट्स आप चेक करो 1 and 3/5 आ रहे हैं शायद, ठीक है, दैट वी नीड टू चेक, देखना होगा क्या। बट c इक्वल टू ओनली सर 3/5 ना। हाँ, अभी वो आगे डिसाइड करते हैं। तो बट आपकी इंटरवल क्या है, दैट c मस्ट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी आपकी क्या है, 0 to 1, तो इनमें से कौन से वैल्यू 0 to 1 रेंज में आ रहे हैं, दैट इज द c एक्चुअली। कैन वी टेक 0? नो सर नो, ये कैंसिल होगा। कैन वी टेक 1? नो, क्योंकि ये भी कैंसिल होगा। तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ c? सो 3/5 इज द ओनली पॉइंट वेयर f dash of c इज 0, क्लियर ना? एंड दैट c बिलोंग्स टू इंटरवल ab। तो आपकी c की वैल्यू क्या है, बेसिकली 3/5। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन में आने वाले हैं एमसीक्यूज में। यस सर द वैल्यू ऑफ c, इट्स मैं आपको डायरेक्टली दूंगा, ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। द वैल्यू ऑफ c, चार ऑप्शन में ये रहेगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 3/5 होगा, एक और कुछ नंबर होगा। तो आपको पता है 0 नहीं आने वाला, 1 भी नहीं आने वाला, 3/5 इज द आंसर, ओके। ऐसे एमसीक्यूज आने वाले हैं सेम टॉपिक पे, ओके। हाँ, वही नीचे दिया c इज इक्वल टू 3/5 बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर दिस इज द वैल्यू ऑफ c, ओके। ये क्वेश्चन शायद हमने लिया है, करेक्ट ना? हाँ यस सर लास्ट ओके, सो आई विल स्किप दिस। और शायद इस पे ये मैंने लास्ट में बस स्टार्ट किया था, ठीक है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। सो व्हाई इट इज कंटीन्यूअस, कैन एनीवन टेल मी अ रीजन व्हाई इट इज कंटीन्यूअस? sir because sir sin x is also continuous, 1 is dominant degree x is also continuous, so both So its division is also continuous, ठीक है। So both are continuous and that denominator is non-zero function, therefore sin x upon e raised to x is also continuous on a closed interval 0 to pi. Now let me check the differentiability. तो उसके लिए मुझे पहले डेरिवेटिव लेना होगा। तो यहाँ पे u upon v रूल से मैंने डेरिवेटिव लिया है, you will get this। तो मुझे डेरिवेटिव में भी so whether this derivative become infinity, tell me a value where this derivative is infinity, या ऐसी कोई वैल्यू आपके पास है जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है? No, sir. नहीं, sir. Therefore, derivative is finite for all points. This denominator is never 0. And if your denominator is never 0, that function is always differentiable.
डिफरेंशिएबल फंक्शन. सर e raised to x 0 तेव्हाच असेल जेव्हा x ची व्हॅल्यू मायनस इन्फिनिटी असेल का सर? दैट पॉइंट इज नॉट देयर इन आवर इंटरवल ना. हां येस सर. ठीक है. सो इट इज दिस डेरिवेटिव इज फाइनाइट. डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेरिवेटिव कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं हो रहा है ना, विच इज क्लियरली एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज, हेंस इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन. ये था उसका रीजन. ठीक है. ओके. नाउ थर्ड केस क्या है, एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करते हैं. एफ ऑफ जीरो क्या है, साइन जीरो अपन ई रेस टू जीरो इज 1, सो इट इज 0. एफ ऑफ पाई कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, पाई एक्चुअली यहाँ पे. तो एफ ऑफ पाई क्या आएगा, साइन पाई अपॉन ई रेस टू पाई. साइन पाई इज 0, ई रेस टू पाई इज अ नॉन जीरो नंबर, बट एट देन इट बिकम 0. ओके. सो एफ ऑफ 0 and f of pi both are equal, so it satisfies all three condition of your Rolle's theorem. ठीक है. So therefore there exists a c such that f dash of c equal to 0. डेरिवेटिव आपने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पे. सो ओके, ये उन्होंने x में एक्सप्लेन किया, बट इट्स बेटर टू राइट इन c. ठीक है. तो cos c माइनस बोलो sin c upon e raised to c equal to 0. But this number is non-zero. 5/4 c is 5. Correct. हाँ. तो cos c minus sin c equal to 0. This implies I can consider as tan c equal to 0. Correct ना? Yes sir. No sir, what? Sorry, 1. 0 नहीं, 1. Tan c 1 हाँ. tan c is equal to 1 है ना, क्योंकि राइट साइड में शिफ्ट होगा, फिर आपको डिवाइड करना है. So tan c 1, then pi must be 5/4. which lies in this interval. The interval 0 to pi. 0 to pi. तो इन्हीं इंटरवल में आपको वैल्यू चाहिए फॉर विच tan c is 1. ठीक है. Just find a value in between this interval where tan c is 1. Okay. Clear. Now verify Rolle's theorem for this function. It is trivial now. It's a polynomial function. तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. f(2) and f(4) चेक करो, ये इक्वल आ रहा है. सो देयर एग्जिस्ट अ c सच दैट f dash of c इक्वल टू 0. तो इसका डेरिवेटिव बस लेना है. सो 2x minus 6 इक्वल टू 0, दैट इज 2c minus 6 इक्वल टू 0. सो व्हाट इज c? c equal to 3. 3. ठीक है. सो and that lies in this interval 2 to 4. ठीक है. so there are some questions for practice. ये मैं PPT आज आपसे शेयर करता, so you can practice these questions. There are okay. and this is all about Rolle's theorem. कुछ क्वेश्चन मैंने कर लिए, तो आज भी मैंने आगे के लिए. so that is the first topic, Rolle's theorem. okay. now next topic is Lagrange's mean value theorem. शायद आपको ये पता था. ठीक है. So Lagrange's mean value theorem is a general case. It's actually a general case. So what is the theorem? So if you are given function which is defined on a closed interval AB, or it is a real valued function, and it is continuous, same condition, continuous on closed interval, differentiable on open interval, then there exists a C. बोल सकते हो क्या रिजल्ट है इस केस में? There exists a C. f dash of c equal to f of हाँ. b minus So that f dash of C equal to f of b minus f of a upon b minus a. ठीक है. let me explain this graphically. ठीक है. let me take here f of a. तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन ये नहीं कि f of a and f of b इक्वल लेने की कोई जरूरत नहीं है. they may be equal, they may be different. तो अगर वो डिफरेंट है तो वो एक लाइन पे नहीं आएंगे. so if this is my f of a, तो f of b में यहाँ पे कहीं पे लेता, बिकॉज आई डोंट वांट दिस टू बी इक्वल, क्योंकि कंडीशन नहीं है. ठीक है. नाउ दिस आर डिफरेंट. अगर वो एक लाइन पे आते तो नहीं इक्वल हो जाएंगे. नाउ लेट मी टेक एनी कर्व इन लेट मी टेक एनी कर्व इन बिटवीन दिस इज द कर्व. ठीक है. नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या है बोल सकते हो? रिजल्ट क्या है? तो एक मैंने फंक्शन लिया, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता वाला कलर से. दिस इज माय कर्व. नाउ यू टेल मी रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? सर मीन्स काय होणार आहे? तर एक पॉइंट असेल ज्याचा स्लोप 0 असेल, लाईक
ती कंडिशन स्लोप 0 असेल नाही ना, स्लोप कुठे 0 दिलं? स्लोप झिरो नसेल सर, स्लोप That slope is equal to दोन what? पॉइंट जॉईन करावं लागेल आपल्याला सर. सो चलो आप बोल रहे हो इसको ज्वाइन करते हैं. सो लेट मी ड्रॉ कॉर्ड इट्स पासिंग थ्रू दिस. तो ये जो लाइन है, अ लाइन विच पासिंग थ्रू अ पॉइंट A f of A and B f of B. What is the slope of this line? सर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ये पॉइंट क्या पता है सबको? ये पॉइंट बेसिकली क्या है? एक ए कॉमा एफ ऑफ ए. ऐसे लिखता हूं तो जल्दी समझ में आएगा. सो दिस पॉइंट इज ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड दिस पॉइंट इज बी एफ ऑफ बी. तो आपको पता है ये if I know 2 points on a curve, I can easily find its slope. So what is the slope of this line? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी. So this slope is exactly equal to, there exists a point, okay? तो यहाँ पे कहीं पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी टेंजेंट इससे पैरेलल आने वाली है, ठीक है ना? So let me highlight that point now with a different color. तो एक यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है, जिसकी जो टेंजेंट होगी, that tangent is parallel to this line, ठीक है? So this is your actually point C. This is a C where f dash of C, तो इसका जो स्लोप है वो, इसका स्लोप क्या है? f dash of C, ठीक है? तो दिस टू स्लोप आर इक्वल, करेक्ट ना? यही रिजल्ट है ना? f dash of C equal to the slope of this line is equal to slope of this line. It means these two lines are parallel, तभी स्लोप इक्वल आएगा ना? So this is the result. ऐसे केसेस में वहां पे so there exists at least one point where the f dash of C is equal to slope of the line which passing through point A comma f of A and B comma f of B, or it's a line which passing through the end points f of A and f of B, ठीक है? and अभी आप इमेजिन करो, इसको अगर मैं इस लाइन पे लेके आता हूं, इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट करता हूं यहाँ पे सेम लाइन पे f of A and f of B इक्वल, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू, इस पॉइंट को नीचे शिफ्ट करो ना यहाँ पे इस लाइन पे, Then it will be parallel to x-axis. this f dash of C, this tangent become parallel to x-axis. X-axis. That is Rolle's theorem. Clear? Yes, sir. Okay. So this Lagrange's mean value theorem is a general result, and Rolle's theorem is actually a particular case of this Lagrange's mean value theorem. Okay. So this is the geometrical meaning, and now. Yeah, so there exists a C which is between this, so that f dash of C equal to f of B minus f of A upon B minus A. And actually इसका जो proof है ना, which is not there in your syllabus, but इसका जो proof है वो Rolle's theorem से ही है. So if you interested, you can refer this proof. Proof आपको किसी भी theorem के proof exam syllabus में नहीं है, ठीक है? Yeah, so I will skip this part. Yeah, तो ये एक alternative statement, ये आपको मैं combine लेता हूँ तीनों का, इतना ऐसा कुछ इसका इम्पोर्टेंस नहीं है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था इजी वे में कि क्या होता है, ठीक है? सो दिस कॉर्ड इज द टेंजेंट और द कॉर्ड इज पैरेलल टू टेंजेंट. ओके, सो ये ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? सो हाँ, ये भी आपको ठीक है, ये एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज द रिजल्ट दैट यू विल गेट फ्रॉम द Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम. बट ये आपको ऑलरेडी पता है. ओके, मुझे ये बोलो, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आपको पता है? हाँ, yes, sir. हाँ. सो इफ योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, व्हाट यू नो अबाउट इट्स स्लोप? Slope is positive. स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग, Negative. स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है? तो वो आप प्रूव कर सकते हो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम से. ओके, सो f dash of x इज पॉजिटिव इफ योर स्लोप इज पॉजिटिव. f dash of x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? क्या थी वैल्यू? ये f dash of c, हाँ, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a.
ठीक है, तो अगर ये आपका एफ डैश ऑफ सी अगर आपका पॉजिटिव आता है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, करेक्ट ना? तो हाँ, बट ये दिस डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हियर यू विल गेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पॉजिटिव, दैट इज एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए. ओके, सो हेंस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर एफ ऑफ बी ग्रेटर देन आ रहा है एफ ऑफ ए से तो वो इंक्रीजिंग होगा. रिवर्स में मिलता है, एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ ए आता है, देन इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, अभी मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि इतना कुछ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं है, ये आपको पहले ही पता क्योंकि ग्राफिकली विजुअलाइज होता है. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर वन रिजल्ट. लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल. एक मिनट, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं. दिस इज माई ए, दिस इज माई बी. तो यहां पे कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन बी, करेक्ट ना? बी ग्रेटर देन लिया है मैंने. Yes. Okay. And if in this case, if I get f of a less than f of b, ठीक है, then what is your function? Is it increasing or is it decreasing? Sir, decrease. Huh? Increasing. It is increasing. ठीक है, ऐसे कहीं पे वो फंक्शन होगा, इनक्रीज ही होगा वो फंक्शन. तो वो रिजल्ट यहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया है, बट मुझे लग रहा है कि इट्स बेटर टू रिमेंबर इन द फॉर्म ऑफ स्लो. ये आपको 1 मार्क के लिए कहीं पे डेफिनेशन पे आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, सो मैं ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. ओके, इट्स इजी टू रिमेंबर व्हेन योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इट्स स्लोप इज पॉजिटिव. Remember like that. And if your function is decreasing, your slope is negative. That is important result जो हम generally use करते हैं. ठीक है, now let me directly focus on the examples. I will extend only 2-3 minutes. Yeah. So अभी आप बोलो मुझे one by one. Can we apply Lagrange's mean value theorem for this or not? ठीक है, पहला फंक्शन x raised to 2/3, इसका ये तो कंटिन्यूस होगा ही, कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेरिवेटिव क्या आएगा, n x raised to n minus 1, that is n x raised to minus 1/3, तो ये नीचे जाएगा. x raised to 1/3. ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, 0 पे आ रही है ना. X equal to 0, yes. बट ये x equal to 0 आपका इस इंटरवल में आ रहा है, -1 to 1 में. Yes, sir. So can we apply Lagrange's mean value theorem for this? Can't. Because it is not a differentiable function. Next, B. For B, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ज्यादा चेक मत करो. पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा, कंटीन्यूअस होगा. Yes. तो Lagrange's mean value theorem अप्लाई कर सकते हो. So by Lagrange's mean value theorem, there exists a C belongs to open interval 0, 1 such that f dash of C equal to, बोलो. सर इसमें वो चेक नहीं करना होता सर, f of a equal to f of b LMVT में? नहीं Lagrange's? नहीं, Okay. क्योंकि उस पे कोई कंडीशन नहीं है ना. Yes, sir. You can take any f of a, any f of b. So if it is continuous, if it is differentiable, there exists a C such that f dash of C equal to f of b minus f of a upon b minus a. तो आपको वो C कैलकुलेट करना है. ठीक है, so what is f dash of C? 1 minus 2x. हाँ, उसके लिए चाहिए आपको f dash of x. f dash of x आपका था 1 minus 2x. तो ये वैल्यू आएगी 1 minus 2c 2c इक्वल टू f of b क्या है, f of b मतलब f of 2. 0. And f of sorry. f of 2 Minus 2 minus 4 is minus 2. minus 2 minus 0. minus f of a 0. ये 0, 0, sir. Yes. b minus a is 2. Yes. 2. Clear? Minus 1. Minus So 1. 1 minus 2c is minus 1. So 2c is 2 ना? Equal to 1. So c is 1. Clear? Yes, sir. ये सॉल्व है सारे क्वेश्चंस. ये आपको ऑनलाइन में आने वाला है ऐसा पार्ट. सी कैलकुलेट करो Lagrange's mean value theorem से, लाइक दैट. ठीक है सर C1 नहीं आ सकता ना इसमें, सॉरी. इंटरवल में तो सर हाँ, but this point not lies in this ना. So there is no point actually. वो
विच इज नॉट बिलोंग्स टू ना, नहीं सर आ रहा है सर। कहाँ पे? है सर अरे हाँ करेक्ट, 0 to ठीक है 0 to 2 ही है ना इंटरवल। अच्छा। और सर मतलब दोनों थ्योरम से सर इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना सर कि सी की क्या क्या वैल्यू हो है? सकता है, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सैटिस्फाइज रोल्स थ्योरम, लाग्रांज वैल्यू थ्योरम। तो चारों फंक्शन में से आप देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो डिलीट कर दो, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन। एंड सेकंड टाइप में क्या होगा, सी कैलकुलेट करने के लिए आएगा। अभी तक इतनी वैरायटी आपको समझ में आ रही है। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे मैं आपको ओके आई विल डिस्कस कि ज़्यादा डिटेल में लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो ही मैं आगे के टॉपिक में वो ऐड कर दूंगा। अभी मैंने ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लेन किया बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्लियर? तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, टेल मी सिंप्लीफिकेशन। आई थिंक ये हो जाएगा, मुझे नहीं इसमें ज़्यादा को टाइम वेस्ट करना है। लेट मी फोकस ऑन द लास्ट क्वेश्चन डायरेक्टली। कुछ क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। तो log x के बारे में बोलो। 1 to e सर log x also continuous है, तर त्या इंटरवल मध्ये कंटिन्यूस आहे। डेरिवेटिव आएगा 1/x। कोई प्रॉब्लम है क्या? x 0 है ही नहीं इंटरवल में, है ना? यस सर। So it is differentiable and continuous. So there exists a c such that f dash of c equal to f of b minus f of a upon b minus a. तो डेरिवेटिव आएगा 1/c, f of b होगा 1 minus 0 1 minus log is 0 upon e minus 1 ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है? e हाँ 1/c is 1/e minus 1। c equal to e c equal to u minus e minus 1 ना, e हाँ ये e minus इसको वो रिवर्स कर दो ना, बस रिवर्स कर दो, यस सर। ठीक है। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने वाले। सो आई थिंक हियर वी कैन स्टॉप, ठीक है। और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस है डिफरेंट फ्रॉम दिस लॉजिक। सर कैन यू प्लीज शेयर दिस पीडीएफ? यस यस मैं शेयर कर देता कैन हूँ। सेल्फ स्टडी। यस कल तक मैंने शेयर किया है पूरा, अभी आज का शेयर कर